Assalamu alaikum. Today we are at MS and all the teachers are here and they are going to take a pledge with me with the Velocity Fit Mission Metabolic. That is, my body is not a burden. It is an amana. And I will take care of it. Thank you so much. कहा गया तो निजामी शहर हैदराबाद में हमारे जिस्म का निजाम समझने के बारे में कहते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ. ठीक है, मेटाबॉलिक हेल्थ इज द निजाम ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी का निजाम है कि आप बात बताने की ये है कि आज मैं आपके सामने मेटाबॉलिक हेल्थ को समझाने के लिए आई हूँ. व्हाट इज मेटाबॉलिक हेल्थ? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ MS एजुकेशन का कि मुझे आज ये मौका दिए हैं आप सबके सामने बैठूं जो कि एजुकेटर्स हैं. मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है ये कि मैं आज यहाँ आपके सामने माशाल्लाह से मैडम अफरोज़ हैं, मैडम नुज़हत हैं और बहुत सारे यहाँ पर एजुकेटर, इतने सारे लोग माशाल्लाह मौजूद हैं जो अपने अपने खुद इतनी डिग्रियाँ रखते हुए, है ना, पढ़ाई की इतनी बैकग्राउंड्स रखते हुए आज अपना बहुत कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं. तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे एक एक लम्हे को कबूल फरमाए और इसको जो है हमारे लिए मुफीद बना दे और कुछ ज़रूर सीखने का मौका बना दे इंशाअल्लाह. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके सामने ठहरी हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेटाबॉलिक हेल्थ अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रहा तो वो सिंपल अंदाज में मैं समझा दूंगी. जैसे ये फ़ैन चल रहा, ये फ़ैन को जब हम स्विच ऑन करते तो चलने का काम करना है, वो कनेक्शन किया गया है. जब अगर फ़ैन अच्छा चल रहा तो इसका मतलब है कि ये सही चल रहा. उसी तरह हमारी जिस्म है. ठीक है, हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके हमें एनर्जी बराबर देता है. अगर हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा स्टूल भी बराबर पास हो रहा है, हम रोज मोशन बराबर कर रहे हैं, हमारा पेशाब सही है, हमारा खाना सही है, हमारा जो सारा निज़ाम है वो सही है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. I am Dr. Lubna Fatima. I am a physiotherapist and an hijama expert, and I am in this field for more than 20 years now. And just last few years I've learned that the health quotient of Hyderabad has been declining to a very bad situation, and that happened when I was going through my father's illness. That is, my father is suffering from chronic kidney disease. At the age of 75, when he came to know that he is suffering from this disease because of his long-standing diabetes, is when I was going a lot into the hospitals related to emergency care. Okay, as a physiotherapist, I dealt with paralytic people and pains and any kind of pains. And hijama, as you know, that we deal with many other cases as well. But when I went with my father to the hospital and I see that at the age of 20, people getting kidney disease. At the age of 30, people are having to transplant their organs, which is a very pathetic situation to see. Very harmful or very sad also to know कि हमारी कम्युनिटी इतना ज़्यादा हर्ट हो रही है, इतना ज़्यादा जो है हेल्थ के लेवल पे आ गई है कि हम इतना वरीड हो गए. When I see the families of those children ही बोलेंगे ना, 20 years पे क्या उनकी लाइफ होगी. My father still he had a good life, alhamdulillah. 75, he's good, alhamdulillah. But at the age of 20, they don't deserve to be so unhealthy or so sad at the moment where they are not able to enjoy their life. They are not doing their jobs. They are not able to go out and work as the other people. 30 years of age, 40 years of age, having small children, they are suffering a lot. So when I saw that situation, I felt that there is a high need that I educate people of what is happening and why is it happening. So with the ailing father and the pain that I have, I turned it into my passion, wherein I want people to understand where we are going wrong. If at all we are, alhamdulillah, Muslims, we know that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us the best practices that can make us healthy enough. But why today are we as a Muslim suffering with health? That is my question to everyone here sitting, and understand why is it happening.
So I come from the medical background. I understand why it is happening, and I wanted to bridge this gap between the common people and the medical professionals, where we can understand where we are going wrong. So to tell you something very simple, very easy, that's what I've planned, that the bottles that will be distributed to you have a small message on that. So please do read it, and there is my number, and you can contact me for any of the things that you feel you haven't understood. So the thing is that when I dealt with my father to understand what a dialysis procedure was like, CKD is a chronic kidney disease where your kidney doesn't work properly. The impurities in your body are left behind, and they need to be purified. The blood needs to be purified, and that is happening with a machine. It would be less of me if I wouldn't thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving a human that ability to create a machine like that. Though I would say it's not 100% the same as Allah subhanahu wa ta'ala made our kidneys. Our kidneys are efficient enough to balance everything. वही अगर कोई डायलिसिस पे जाता है पेशेंट, उनका सॉल्ट कितना है, उनको जरूरत कितना है, उसमें कंफ्यूजन होता है. इसीलिए जब पेशेंट जाता है उन लोग को काफी सारी चीजें होती है ड्यूरिंग द डायलिसिस. बट you sitting as a normal person, subhanallah, alhamdulillah, that we have healthy kidneys, but sadly enough we are not treating it well. हम उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं. हैंडल विद केयर कहते हैं ना, कुछ फ्रेजाइल चीज होती है हमारे पास, कांच की चीज होती है, तो हम उसको कहते हैं कि हैंडल विद केयर, बट वी आर नॉट डूइंग द केयर दैट वी रियली नीड आवर ऑर्गन्स टू बी इन. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना शुक्र है कि एक इंसान को इतनी सलाहियत दिया कि एक मशीन बना सके जो कि एक इंसान की इम्प्योरिटीज को क्लियर कर सके. लेकिन उस दौरान मैंने ये नोटिस किया कि मेरे वालिद साहब को वो जब भी इम्बैलेंस होता था उनके ब्लड में, तो उनको जैसे फिट्स की अटैक आता ना, वैसे आते थे. दे यूज्ड टू इमीडिएटली पुट सॉल्ट्स इन द मशीन. तो मुझे लगा कि सॉल्ट कितना इम्पोर्टेंट है ना. और उसी दौरान आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी, सॉल्ट एंड वाटर एज वेल. किडनी फेलियर हो गया है तो पानी को कंट्रोल किया जाता है. माई फादर कैन ओनली ड्रिंक 1 लीटर अ डे. ही शुड नॉट बी गोइंग एनी 1 ड्रॉप ahead of that, and those people who go ahead of that need more of the time to clear off their blood, and they do all that. हमारे लोगों को खाना रुकता नहीं है, समझ गया, परहेज होता नहीं है. जबकि इंसान मुसलमान अगर हम बोल रहे, the word Muslim itself brings the compulsion on you that you have to be a God conscious person. परहेजगारी किसको कहते हैं? तकवा को. तकवा का माना है परहेजगार बनो. जब ये बात आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के सामने, तो कहा, एक दूसरे से जब इंटरैक्ट कर रहे थे तो पूछा तकवा क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा रास्ता जो कांटीदार है, 2 तरफ से कांटीदार झाड़ है, और उसमें से आप गुजर रहे हो, तो आप कैसे गुजरेंगे? आप अपने कपड़ों को बचा कर गुजरेंगे, राइट. तो ये तकवा है. कहा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कलमा एक दूसरे से चल रहा था, मुकालमा. सो देयर वी अंडरस्टैंड आवर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ कॉन्शियस पर्सन. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट गुड मुस्लिम्स. तो हम जब परहेज करते हैं तब हम एक अच्छे मुसलमान की निशानी बनते हैं. तो मैं ये बात बता रही थी कि पानी कितना इंपॉर्टेंस है. उस वक्त मुझे ये पता चला, और उस वक्त ये भी पता चला, बहुत सारे वैसे चीज़ें पता चली. उसमें से मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगी कि ख़वातीन हैं कि पानी पीते भी कम है, और टॉयलेट जाने की फिक्र की वजह से जो है जाते भी नहीं है बाहर, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू. हमारे वो पुश्तैदी दादी माँ नानी माँ बोल दिए कि भाई बाहर बच्चा टॉयलेट नहीं जाना है. लेकिन क्या उस जमाने में औरतें बाहर इतना घंटे रहती थी? नहीं रहती थी ना. तो फिर वो बात आज के लिए सही नहीं है. या उस वक्त की बात ये थी कि जब टॉयलेट्स उस लेवल के नहीं हुआ करते थे, क्लेanलीनेस में उतने लेवल के नहीं थे. आज आपके पास टाइल्स हैं, टॉयलेट्स में कमोड्स हैं, आपको इतने नीट टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, फिर भी आप वो दादी और नानी की बात लेकर चले हुए हैं. और उसमें क्या हो रहा है? आपका नुकसान, आपकी किडनीज खराब हो रही हैं. क्यों खराब हो रही हैं? क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे, इसीलिए. और जब पानी पीने की हम बात करते हैं तो आपको मसला क्या पेश आता है कि आप कहते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं जाना चाहती घर के बाहर. अगर आप सोचिए कि 50 लोग पूरे मिलकर यही डिसाइड कर लें, तो फिर क्या होगा? आप दिन दिन भर बाहर रहेंगे, आप
टीचिंग कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप घर जाके टॉयलेट जाएंगे तो आपकी किडनीज क्या बोलेगी दिन भर के, तो आप मिसयूज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद ये इरादा करिए कि आप अपने ऑर्गन्स को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही उसका जो है यूज करेंगे, है ना, और बनी बनाई बातें जो पुश्तैदी हैं उनको जो है थोड़ा एनालाइज भी करें, ठीक है। उस वक्त में आप लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, आज एजुकेटेड भी हैं, राइट। तो जो मशीन काम करती है वो बहुत कम ही होती है बनिस्बत इसके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 2 किडनियां हमारे जिस्म में दिए हैं, राइट। तो कहा गया तो निज़ामी शहर हैदराबाद में हमारे जिस्म का निज़ाम समझने के बारे में कहते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ, ठीक है। मेटाबॉलिक हेल्थ इज द निज़ाम ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का निज़ाम है कि आप यहाँ से शुरू करके जो आखिरी हमारा एंड पॉइंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां तक सिस्टम सही चल रहा तो दैट इज कॉल्ड नाइस मेटाबॉलिक हेल्थ। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, हर दूसरा आदमी आप देखते हैं डायबिटीज का शिकार है, हर कोई आदमी जो है ना स्वेलिंग हो रही है चेहरों पर, है ना, चेहरा स्वेल्ड है। बहुत कम लोग हैं जो अपने नेचुरल हेल्दी वेट पर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 लोग मौजूद हैं तो मैं यकीन से बता सकती हूँ कि यहाँ पर शायद 50 लोग भी नहीं होंगे जो अपने हेल्दी वेट कैटेगरी में होंगे। कैसे पता करना है हेल्दी वेट कैटेगरी क्या है? कोई मुझे अगर आप लोगों में से जो है अपना वेट बताएंगा तो अच्छा रहेगा। कोई हाथ उठा के बता सकते हैं मुझे? ओके, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दैट। यस, व्हाट इज योर वेट? 67 इज योर वेट एंड व्हाट इज योर हाइट? 55। सो 55 जो हाइट है ना उसको आप बगैर डॉट का नंबर बना दीजिए 55। तो हर आइडियल बॉडी वेट वुड बी 55। शी इज how many kgs above? How many kgs? 12 kgs above her. Don't laugh. She was brave enough to share her weight. Okay? हमारे पास बोलते हैं कि वजन और एज नहीं शेयर करना है, राइट? तो सबके पास ये होता है। लेकिन I'll tell you this is the thing कि आप अपनी खुद हाइट को इस तरह पॉइंट निकाल के चेक कर लीजिए आप कितने ओवरवेट हैं। तो क्या ये हमारी होनी चाहिए? जबकि हाँ, अभी कोई नहीं बोलेगा ना, बट शी वॉज ब्रेव इनफ टू शेयर दैट। जज़ाकल्लाह खैर। I'll give you a gift for that. I'll give you a gift. तो ये एक फॉर्मूला हो गया। आप जहाँ पर भी आप मेडिसिन, हमारी लतीफ़ा हमेशा ये बात बोलती है कि जब भी इंसान को तकलीफ होती तो पहले अल्लाह की तरफ जाने से पहले कोई कैंसर या कोई मेडिसिन या कोई डॉक्टर या कुछ भी, तो जितनी हमारे उस क्वालिटी का होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू अडेप्ट दिस कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी नीडेड फॉर द आवर। It is the need of the hour. आप कहाँ पर भी जाएंगे देखिए मेडिकल हॉस्पिटल में इतनी लाइन लगी हुई है just for the basic things that BP, diabetes, hypertension, migraines and all these things. This is happening because of the poor lifestyle. रातों में जागना because of the mobile, हमारे नेग्लिजेंस जो है काम में बिजी रहना, और हम सबसे आखिर में अपने बारे में सोचते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचना है तो फिर हम अपनी पूरी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं, हम अपनी पूरी कम्युनिटी का भी ख्याल रख सकते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ यू इज नीडेड दैट ये जो कोर 4 है या ये जो मिशन मेटाबॉलिज्म